حسن کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم سب اسی رب کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا بھی اسی سے کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ محترم سامعین، دنیا بننے کے بہت سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ صرف آدم علیہ السلام ہی دنیا میں باقی نہیں رہے، بلکہ اس کے رہتے ہوئے اس کی اولاد بھی دنیا میں آئے۔ ان کی اولاد سے اور بھی اولاد پھیلتی گئی، یہاں تک کہ آج ہم آدم کی اولادوں میں موجود ہیں۔ محترم سامعین، پہلے کے زمانے کو دیکھو، جب ایک باپ یا پھر کوئی بھی بڑے رشتہ دار کہیں رہتے تھے، وہاں چھوٹے نہیں رہتے، اگر چھوٹے وہاں پر رہتے بھی تھے سلیقے کے ساتھ رہتے تھے، ان کی زبان بند رہتی تھی، ان کے ہاتھ پیر ہلتے نہیں تھے۔ کہیں پر اگر بڑے بات کرتے ہیں، چھوٹے وہاں پر بات نہیں کرتے تھے۔ اور آج کی حالت دیکھو، کہیں پر بڑے بیٹھے ہیں، ساتھ میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے کی بولی میں کوئی پابندی نہیں، جو زبان میں آتا وہی بول دیتے ہیں، چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مار پیٹ اگر ہو جاتی ہے تو پہلے چھوٹے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بڑے پر۔ یہ حالت ہے آج۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں آج چھوٹے سے بچے کے اندر اتنی ہمت آ گئی؟ کیسے آ گئی؟ کیوں اولاد ماں باپ کو مارتی ہے؟ کیوں اولاد ماں باپ کو گھر سے بے دخل کر دیتی ہے؟ جبکہ گھر والدین کا ہے، زمین والدین کی ہے، لیکن آج روک دبدبا، اس پر حکومت، اس پر کنٹرول اولاد کی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اسی لیے ہے کہ آج کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح طریقہ نہیں بتاتے۔ جب کوئی بھی ماں باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کسی کو مار رہا ہے، اسی وقت اس کو ٹوکنا اور اس کو سمجھانا چاہیے کہ مارنا نہیں چاہیے، بڑوں کو مت مارو، چھوٹے کو بھی مت مارو۔ آپ نے اس وقت روکا نہیں، پھر وہ کبھی کسی کو مارتا ہے، پھر وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مارتا ہے، تو پھر آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ میری اولاد، میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے بچے کو سمجھایا نہیں تھا کہ کسی کو مارنا نہیں چاہیے۔ آپ نے بچوں کو سمجھایا نہیں تھا کہ کسی سے بحث نہیں کرنا۔ آج ماں باپ چھوٹے بچے کو اگر دروازے سے چوٹ لگ جاتا ہے تو ماں باپ خود بچے کو لے کے جاتا ہے، بولے مارو دروازے کو، مارو۔ کوئی اگر ڈانٹ دیتا ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے، بچے کو لے کے جاتا ہے پیٹ کی طرف، اور مارو چاچو کو، مارو بھیا کو، مارو دادو کو۔ اس طرح بچے کو سکھا رہا ہے خود ماں باپ۔ وہ بچہ کیا سیکھتا ہے؟ سائیکولوجی کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ بچہ 1 سال سے لے کر 6 سال تک سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اس کی۔ اس کا بھیجا پوری طور پر خالی رہتا ہے۔ بھیجے میں بھی کئی ڈیوائڈ ہوتے ہیں، جو قرآن میں ہے، سورہ علق میں۔ یہاں سامنے طرف کی جو بھیجے ہیں یہ صرف انسان کے سوچنے کی ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان سوچ نہیں سکتا ہے تو وہ پاگل، اس کا یہ سامنے کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔
उसी तरीके से दिमाग का पिछले का हिस्सा इंसान के याददाश्त का होता है, सीखने का होता है, और आप सिखा रहे हैं उसको मारने की, आप सिखा रहे हैं उसको उससे अलग कट कर रहने की, आप उसको सिखा रहे हैं मोबाइल दिखाने की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया सूरत तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने ईमान वालों को कहा, क्या फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। जहन्नम से बचाओ कैसे? कैसे जहन्नम से बचा सकते हैं? जबकि अगर कोई भी औलाद अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल देती है तो वो औलाद जन्नत नहीं जा सकती है। आपने उसको जहन्नम से तो बचाया नहीं, आपने तो उसको जहन्नम से बचाया नहीं, अब वो मार रही है आपको, वो जन्नत कैसे जा सकती है? आपके बच्चे आपको धमका रहे हैं, आपको बच्चे आपको डांट रहे हैं, तो वो माँ बाप को डांटने की वजह से वो जहन्नमी बन जाता है, जन्नत नहीं जा सकता है। फिर आप कैसे बचा सके? नहीं बचा सके, क्योंकि बच्चों की सीखने की उम्र छोटे से आपने सिखाया नहीं है। आप उसको सिखाओ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अद्दिबूहु व अल्लिमूहु, उन लोगों को अदब सिखाओ, इल्म सिखाओ, कैसे लोगों के साथ रहना, कैसे लोगों के साथ बातचीत करना, कैसे लोगों के साथ डिफेंड करना, ये सारी चीजें उन लोगों को सिखाओ। आज थोड़ी सी बात पर बच्चे को कह देते हैं कि मारो इसको, छोटा सा बच्चा मारना भी नहीं जानता है, उसका हाथ माँ बाप खुद पकड़ के जो डांटता है उसके पीठ पे मारते हैं, उसके गाल पे मारते हैं, उसके सिर पर मारते हैं। मारना, हाँ, बच्चे हाथ नहीं उठा पाते हैं, माँ बाप खुद उसके हाथ उठाकर मारते हैं। ये तो मारने की तरबियत, मारने की आदत तो आपने सिखाई। जब आपको मार रही है तो फिर आप कहते हैं कि मेरी औलाद मुझे मार रही है। इसीलिए अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। जहन्नम से बचाने के लिए उसको सही तरीका सिखाओ, कुरान हदीस का इल्म दो। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़कर आते हैं, जब तक माँ घर के बर्तन मांज देती है, जब तक माँ अपनी औलाद को, अपने बेटे बेटियों को गोद में ले सकती है, तब तक माँ घर में रहेगी। जब तक बाप बाजार से सौदा लाकर घर में लाकर देगा, तब तक बाप घर में रहेगा। जब वो काम नहीं कर सकेगा, उसको ओल्ड एज होम में भेज दो, क्योंकि अब ये हमारे काम के नहीं है। ये कौन करता है? कौन? ये वही लोग करते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर और बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। उसके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, इसीलिए ऐसे लोग करते हैं। आप अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म दो, तब समझ में आएगा कि कौन अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेजता है। क्या सिखाते हैं आप? क्या सिखा रहे हैं? आपके बच्चे 10 साल के हैं, आप एक फैसला सुनाते हैं कि घर में यह होना चाहिए, आपका बेटा तड़ाक से खड़ा हो जाता है और आपकी जुबान पर बोल देता है। आपकी हिम्मत कैसे, उसको हिम्मत कैसे हुई कि अपने बाप के सामने 10 साल का बेटा 40 साल 50 साल के बाप के सामने वो अपनी आवाज ऊंची करके बात करे? उसको हिम्मत कैसे मिली? ये हिम्मत तो आप दे रहे हैं, उस वक्त रोके क्यों नहीं आप? ऐसी औलाद जन्नत नहीं जा सकती है। और आप एक औलाद को बुखार हो जाती है, बीमार हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, जबकि वो औलाद जहन्नम जाएगी, आग में जलेगी। वो आग कैसी? उसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम पत्थर और इंसान के लिए है। उस जहन्नम को पत्थर और इंसान के लिए तैयार किया गया है। उस जहन्नम में इंसान जाएगा, इंसान जलेगा उस जहन्नम में। वो इंसान कौन होगा? या तो मैं या आप। मैं भी तो किसी के औलाद हूं, आप भी तो किसी के औलाद हैं, आपके भी तो औलाद हैं। कौन जाएगा जहन्नम में? इंसान। इंसान कोई दूसरी मखलूक नहीं है। या तो आप किसी की औलाद होने के नाते अगर आप किसी अपने वालिदैन को डांटते हैं, आप अपने वालिदैन को घर से निकालते हैं, आप अपने वालिदैन का फैसला नहीं मानते हैं, तो आप इंसान है। उस इंसान के जरिए उस जहन्नम को भरा जाएगा। फिर अगर किसी भी इंसान के सिलसिले में अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इसको जहन्नम में डाल दो,
किसी भी इंसान के फैसले में अगर सिर्फ अल्लाह ने इतना कह दिया कि इसको जहन्नम में डाल दो, फौरन फरिश्ते आकर उसको पकड़ के लेके जाएंगे। चाहे तुम्हारी पूरी खानदान उस फरिश्ते के सामने गिड़गिड़ाए, उस फरिश्ते का पैर पकड़ ले, उस फरिश्ते के सामने पूरी दुनिया के लोग आकर रोके, वो फरिश्ता नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? अल्लाह ने फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, क्योंकि वो फरिश्ते सख्त दिल और मजबूत हैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सारे इंसानों से ज्यादा ताकतवर वो फरिश्ते होंगे। उसके दिल भी बहुत ही ज्यादा सख्त, किसी का रोना धोना उसका दिल नरम नहीं होगा। आज मेरी औलाद मेरे सामने रोती है, मैं नरम हो जाता हूं, मेरी औलाद को चॉकलेट ला कर देता हूं, मेरी औलाद को खिलौने देता हूं, मेरी औलाद को कुछ और भी दे देता हूं, क्योंकि मेरी औलाद बहुत ज्यादा रो रही है। उस वक्त तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे पूरी दुनिया वाले अगर उस फरिश्ते के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, उसका पैर पकड़े, कुछ भी करे, उसका दिल नरम नहीं होगा। सख्त दिल फरिश्ते होंगे और मजबूत होंगे, कोई मजबूत आड़ उसको रोक नहीं सकती। ऐसे फरिश्ते उस जहन्नम के लिए तैयार किए गए हैं और वो फरिश्ते लेकर जाएंगे। तुम क्या समझते हो कि आज मैं अपनी औलाद की हिफाजत कर लेता हूं? आज मैं मेरी औलाद के लिए बुखार की दवा, बीमारी की दवाओं का इंतजाम कर लेता हूं? ये तो तुम कर लेते हो, ये दुनिया की चीज है। आखिरत में तुम्हारी नहीं चलेगी। आखिरत में किसी भी मुल्क का चीफ मिनिस्टर हो या सीएम हो या पीएम हो, किसी की भी हुकूमत नहीं चलेगी। वहां सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह ने अगर एक इंसान के बारे में बता दिया कि इसको जहन्नम में लेकर जाओ, चाहे वो तुम्हारी औलाद हो या फिर खुद तुम हो, जहन्नम में डालकर ही रहेगा। इसीलिए जहन्नम से बचने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लुकुम राइन फमस्ऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। वर्रजुलु राइन अला अहले बैती, हर आदमी, हर मर्द अपने घर का जिम्मेदार है। वमस्ऊलुन अन्हुम, और उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वल्मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही, और औरत जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसके शौहर और उसके शौहर के बच्चे की जिम्मेदार बन जाती है वो औरत। वहिया मसऊलतुन अन्हुम, और उस औरत से भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी क्या है? मर्द को उसके घर के बारे में पूछा जाएगा, घर का जिम्मेदार है। औरत उसके शौहर के घर और उसके शौहर के औलाद की जिम्मेदार है, और उसकी जिम्मेदारी के बारे में भी पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी यह है कि फजर का वक्त है, ठंड का मौसम है, बच्चे सो जाओ, ठंड लग जाएगी, नमाज में मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, नमाज के लिए ठंड लग जाएगी। ये जिम्मेदारी है। आप कौन है उसको नमाज से रोकने के लिए? आप उस पर हुकूमत नहीं कर सकते, आप उस पर अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकते। आप सिर्फ उसकी जिम्मेदार है। उसको नमाज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसको रोजा रखना है या नहीं रखना है, उसको कुरान पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये अल्लाह और उसके रसूल फैसला करेंगे। आप इसका फैसला नहीं कर सकते। आप सिर्फ जिम्मेदार हैं कि वो नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदार आप है। वो कुरान पढ़ रहा है या नहीं, इसके जिम्मेदार आप है। वो रोजा रखता है कि नहीं, इसके जिम्मेदार आप है। वो कब नमाज पढ़ेगा, कब रोजा रखेगा, इसका फैसला आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि वो नमाज पढ़ रहा है या नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, इसका फैसला आप नहीं कर सकते। आज माँ बाप पूरे तौर पर फैसला करते हैं कि बच्चा छोटा है, रोजा नहीं रखेगा, बच्चा छोटा है, अभी नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चा छोटा है, अभी मदरसा नहीं जाएगा, बच्चा छोटा है, अभी कुरान नहीं पढ़ेगा। यह फैसला तुम करोगे, यह फैसला तुम्हारा नहीं है। फैसला अल्लाह करेगा कि किसको नमाज पढ़ना है, कब नमाज पढ़ना है, किसको रोजा रखना है, कब रोजा रखना है, किसको कुरान पढ़ना है, कब कुरान पढ़ना है, किसको क्या करना है, नहीं करना है, ये अल्लाह उसके रसूल फैसला करेंगे। तुम्हारे फैसले की चीज नहीं है। सिर्फ तुम एक जिम्मेदार हो, तुम एक जिम्मेदार हो। तुम जिम्मेदारी के तौर पर देखो कि अल्लाह के रसूल ने जब बता दिया कि 7 साल जब बच्चा हो जाए, बच्चा या बच्ची की उम्र जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को कहो कि नमाज पढ़ो। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं बच्चा छोटा है, आप हुकूमत नहीं कर सकते।
जब 10 साल का हो जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तब भी नमाज ना पढ़े तो उसको मारो कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। आप उस वक्त फैसला नहीं करेंगे कि नहीं अभी बच्चा स्कूल जाएगा, अभी बच्चा ट्यूशन जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, यह फैसला नहीं चलेगा आपका। आप सिर्फ जिम्मेदार हैं ट्यूशन का वक्त हो या स्कूल का वक्त हो, लेकिन अभी नमाज का वक्त हो चुका है। बच्चा 10 साल का हो चुका है, 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है, अब उसको नमाज पढ़ना है, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, नमाज का वक्त हो चुका है, अभी नमाज पढ़ना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप फैसला नहीं कर सकते कि नमाज कब पढ़ेगा, नमाज कब पढ़ेगा ये अल्लाह और उसके रसूल फैसला करेंगे, आप सिर्फ एक जिम्मेदार हैं। माँ बाप अपना फैसला सुनाते हैं बच्चों पर, इसीलिए तो औलाद बिगड़ती है, इसीलिए तो औलाद आपको मारती है, इसीलिए तो औलाद आपको घर से निकालती है। और आप लोगों को सुनाते हैं कि मेरी औलाद ऐसी, मेरी औलाद वैसी, तुम खुद हुकूमत चलाते हो। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म फैसला सुना दिया है उसके जिम्मेदार है आप। सिर्फ आप हुकूमत नहीं कर सकते, आप अपने औलाद पर फैसला नहीं कर सकते। जितनी मेहनत आप अपनी औलाद के ऊपर करते हैं कि बच्चे के लिए सुबह उठकर टिफिन तैयार करना, उसके लिए खाने की तैयारी करना, फिर अच्छे से नहला धुला कर कपड़े पहना कर उसका बैग किताब सब कुछ चेक करके उसको पकड़ा देना, स्कूल भेजना, फिर स्कूल से आकर उसकी अच्छी से साफ सफाई करना, फिर ट्यूशन भेजना। इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं, क्या इतनी मेहनत बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं? क्या इतनी मेहनत आप बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए कर रहे हैं? क्यों नहीं करते? आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने? आप ये चाहते हैं? ये तो दुनिया की चीज है। आपने आखिरत के लिए क्या चाहा? आखिरत के लिए क्या चाहा आपने कि मेरा बेटा आखिरत के लिए क्या करेगा, आखिरत में क्या बनेगा, क्या करेगा आपका बेटा? आपने कभी सोचा? आप आखिरत के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ सोचते हैं कि दुनिया के बारे में, कि दुनिया में मेरी औलाद डॉक्टर बन जाए, दुनिया में मेरी औलाद पैसे वाले बन जाए, दुनिया में मेरी औलाद इंजीनियर बन जाए, दुनिया में मेरी औलाद टीचर और मास्टर बन जाए। ये आप चाहते हैं। आपने आखिरत के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? आप क्या समझते हैं आप मर जाएंगे, आपकी औलाद कयामत तक जिंदा रहेगी? कब तक जिंदा रहेगी? क्या कर रहे हैं आप? दुनिया को नहीं देखते? दुनिया की हालत अभी कैसे कैसे हो गई है। आप कहां सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ घर के बर्तन और घर का बिस्तर, इसी चीजों पर आपकी नजर है। दुनिया की हालत आप नहीं देखते। कम से कम अपने इंडिया की तो हालत देख लो, तुम्हारी क्या हो रही है। अपनी हालत देखो, अपनी औलादों को संभालो। सिर्फ स्कूल और कॉलेज और ट्यूशन बच्चों को तरबियत नहीं देते। कौन से स्कूल में बच्चों को सिखाता है कि माँ बाप को नहीं मारना? कौन से स्कूल से बताओ? आज अगर वो तरबियत देता है स्कूल में तो बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं भेजता। और शैतान का इतना गलबा आ चुका है मुसलमानों के अंदर कि कोई भी अगर बच्चा बिल्कुल 24 घंटा पाबंदी के साथ रेगुलर स्कूल की किताबें पढ़ता रहता है तो कहता है बहुत मेहनती है, बहुत आगे जाएगा। कोई भी बच्चा अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, हदीस भी सुनता है, हर खुतबे में आगे आ जाता है, दर्स सुनता है, तो कोई ना कोई उसको कहता है कि इतना मत करो, पागल हो जाओगे। ये जरूर कहता है। मैं अपने कानों से सुना हूं ये बात। जब एक आदमी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वो हर वक्त कोशिश करता है कि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक ही रहूंगा, उसको कोई कहता है कि तू पागल हो जाओगे। अब दुनिया जानती है कितने लोग स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है। कौन सा ऐसा इंसान है जो कुरान पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है? दिखाओ कौन सा ऐसा इंसान है। पूरी दुनिया में आप रिसर्च करो और बताओ कौन सा ऐसा इंसान है जो कुरान और हदीस पढ़कर पागल हो गया है। मैं दिखा सकता हूं इसी हिरनपुर में कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। आप नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 में, क्या फरमाया? फअम्मा मन तगा, जिसने सरकशी करना यानी नाफरमानी करना अपनी औलाद को स्कूल की वजह से। यहां भी कितने माँ बाप हैं जो अपने औलाद को स्कूल भेज देते हैं, जुमा छोड़ दो, जुमा नहीं पढ़ना, स्कूल जाओ, स्कूल के लिए जुमा छोड़ देते हैं।
एक दिन अगर जुमा के दिन स्कूल ना जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर एक दिन? महीने में तो सिर्फ 4 हफ्ते आते हैं, 4 हफ्ते में 4 जुमा, 4 दिन अगर तुम्हारा बेटा एब्सेंट करता है स्कूल में तो क्या वो मास्टर नहीं बन पाएगा? वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा? क्यों अपने बच्चों को जुमा छोड़कर स्कूल भेज देते हो? क्यों? यही है नाफरमानी। फअम्मा मन तगा, जिसने सरकशी की, नाफरमानी की अल्लाह और उसके रसूल की, जुमा छोड़कर बच्चों को स्कूल भेज देता है, जुमा छोड़कर अपने कामों में लगा रहता है, जुमा छोड़ देता है, ट्यूशन और स्कूल की वजह से नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है, ट्यूशन और स्कूल की वजह से मदरसा में या फिर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। ऐसे लोग नाफरमान हैं, सरकश हैं। वो आसरल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी की तरजीह देते हैं। यानी दुनियावी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझता है। वो समझता है कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, ऐसी सारी चीजें बंद, वो सिर्फ दुनिया चाहता है। वो आसरल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है। तरजीह देने का मतलब 2 चीजों में एक चीज को ज्यादा चाहना। जैसे अगर मान लो सोने और चांदी दोनों एक एक जगह रखा हुआ है तो आदमी क्या चीज चाहेगा से ज्यादा? क्या? गोल्ड, क्योंकि सोने की कीमत ज्यादा है। फ्री में अगर सोना मिलता है, चांदी मिलता है, दोनों में से एक लेना होगा आपको। आप क्या लेंगे? क्या लेंगे आप? सोना ही तो लेंगे, क्योंकि सोने की कीमत ज्यादा है। इसी तरह एक तरफ दुनिया और दूसरी तरफ आखिरत है। आप आखिरत को छोड़कर दुनिया लेना चाहते हो, आप आखिरत को छोड़कर दुनिया लेना चाहते हो। दुनिया लेने का मतलब है कि जितनी मेहनत तुम दुनिया में कर रहे हो, दुनिया के लिए, पैसों के लिए, बच्चों की डिग्रियों के लिए तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, नमाज, रोजे, कुरान की तिलावत, गुनाहों से बचने की, ये सारी चीजें मेहनत तुम नहीं करते हो। यही है दुनिया की जिंदगी को तरजीह देना। अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर कोई सरकशी करता है, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देता है, तो इन्नल जहीम हियल मावा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम है। आज कोई भी अगर स्टूडेंट मान लो तैयारी नहीं करता है, पूरे साल भर वो ऐसे ही घूमता फिरता है, आवारा रहता है, न पढ़ाई न लिखाई न कुछ, वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। होता कि नहीं होता है? इसी तरीके से कोई भी अगर दुनियावी जिंदगी को चाहता है, वो तैयारी नहीं करता है आखिरत की, जरा सा भी तैयारी नहीं, न नमाज के जरिए, न रोजे के जरिए, न कुरान की तिलावत के जरिए, और न गुनाहों से बचने के जरिए तैयारी नहीं करता है, तो क्या उसको जन्नत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आखिरत के लिए उसने तैयारी किया ही नहीं है। क्या किया है? आज के इन मुसलमानों को देखो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ। दुनियावी जिंदगी के लिए, यानी दौलत के लिए तुमने नमाज को छोड़ दिया। कितने सारे मुसलमान हैं जो रमजान के महीने में काम कर रहा है बाहर। मैं खुद पूछा हूं कि रोजा रखते हो या नहीं, बोला टाइम नहीं मिलता काम के लिए। एक काफिर रमजान के महीने में रोजा नहीं रखता, तुम भी एक काफिर की तरह रमजान के महीने में रोजा नहीं रखते हो, सिर्फ पैसों के लिए। तुम क्या चाहते हो कि दुनिया में मेरे लिए पैसे आ जाए, आखिरत में तुम कुछ नहीं चाहते? क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी अगर सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में काम कर रहा है, उसको पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है कुवैती पैसों के जरिए। उसके हाथ में जो कैश दिया जाता है, इंडिया के पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जब वो भेजते हैं इंडिया अपने माँ बाप को, अपने घर को, तो वो बदल जाते हैं। बदलते कि नहीं बदलते हैं? बैंकों के जरिए वो भेजता है कुवैती डॉलर, सऊदी अरब के दिनार दिरहम, लेकिन माँ बाप को मिलता है क्या? रुपया। मिलता है कि नहीं मिलता? इसी तरीके से दुनिया में अगर तुमने जो कुछ भी अमल किया है, जैसे अभी नमाज पढ़ोगे, जुमा की नमाज, ये नमाज बदल जाएगा नेकियों में। तुम मत समझो कि मेरी नमाज ये मेरे ही पास रह गया, ये बदलता है। तुम जो पैसे देते हो गरीबों को, मिस्किनों को, या फिर बेवाओं को, यतीमों को, जरूरतमंदों को, हाजतमंदों को, यह पैसा भी बदल कर अल्लाह के सामने, जो अल्लाह के वहां, अल्लाह के पास जो खजाने चलते हैं, अल्लाह के पास जो करेंसी चलती है, उस करेंसी में बदल जाएगा। इसके सिलसिले में बहुत सारी लंबी बातें हैं, वो बात बताएंगे इंशाअल्लाह। ये औलाद की तरबियत के सिलसिले में है कि आज अगर कोई भी औलाद
اپنے ماں باپ کو مارتی ہے، ڈانٹتی ہے، تو یہ غلطی اپنے ماں باپ کی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو چھوٹے میں سمجھایا نہیں کہ دوسروں کو مارنا نہیں چاہیے۔ جب آپ نے سمجھایا نہیں تو اس کو معلوم ہی نہیں، پھر بڑے ہو کر خود تم کو مارتا ہے، خود تم کو ڈانٹتا ہے کیونکہ تم نے سمجھایا نہیں۔ اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قرآن و حدیث کی تعلیم دو۔ آج مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو برے نظر سے دیکھتے ہیں عام مسلمان۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھا کر، اسکول میں پڑھا کر، کالجز میں پڑھا کر، میں نے خود دیکھا ہے ایک آدمی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، ایک آدمی اپنے بچے کو پڑھا کر ڈاکٹر بنا دیا، ڈاکٹر، بنگلور کا وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن ہے وہ، لیکن اپنے ماں باپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا، ایک روپیہ نہیں دیتا اپنے ماں باپ کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ قرآن و حدیث کا علم نہ دینے کی وجہ سے یہ ہے۔ اب کیا فائدہ اپنے بچوں کو اتنا بڑا ڈگری دے دینے کے بعد جب آپ کی وہ مدد نہیں کرتا، جب آپ کو وہ پیسے نہیں دیتا، خود آپ بیمار ہو جانے کے بعد وہ ڈاکٹر ہے، پھر بھی باپ بیمار ہو جانے کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے باپ کا علاج نہیں کرتا، پیسے نہیں دیتا، باپ اکیلا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو ڈاکٹر مت بناؤ، ماسٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، یہ میں نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں کہ تم جو کچھ بنانا چاہو بناؤ، لیکن نمازی تو بھی تو بناؤ، قرآن پڑھنے والا بھی تو بناؤ، روزہ رکھنے والا بھی تو بناؤ۔ سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اگر دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں خسارے میں ڈال دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرمایا تو جو دنیا جلدی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں، میرے گھر ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، وہ افسوس کرتا ہے۔ سورہ منافقون آپ پڑھو، وہاں پر اللہ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جب مرتا ہے اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کا گھر، اس کی گاڑیاں، اس کے پاس دولت، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ جب وہ مرتا ہے، مرنے کے وقت وہ جب اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے کیوں وہ وقت نہیں دیا کہ میں صدقہ کروں، مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں صدقہ کروں، میرے پاس بہت سارے دولت ہے، میں صدقہ کر دوں، میں غریب کو بانٹ دوں، میں بیواؤں کو دوں، میں یتیموں کو دوں۔ وہ اس وقت آدمی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وقت تمہاری ختم، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی تم نے ایسے ہی گزار دیا، اب جب وقت ختم ہو رہا ہے تب تم وقت مانگ رہے ہو، اتنے وقتوں سے کیا کر رہا تھا؟ آج تمہاری یہ وقت ہے۔ جب تمہارے پاس اولاد آتی ہے اس وقت یا تو تمہاری عمر 25 سال یا 30 سال کی ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر اگر 40 سال تم زندہ رہتے ہو، یعنی تمہاری عمر 40 سال ہوتی ہے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ 10 سال رہتی ہے۔ اگر تمہاری عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ 20 سال رہتی ہے۔ 20 سال یا 30 سال رہنے کے بعد بھی تم نے اپنی اولاد کو نمازی نہ بنایا، تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے والا نہیں بنا سکا، تم نے اپنی اولاد کو روزہ رکھنے والا نہیں بنا سکا، تو تم نے کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ یہی سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا یاد رکھو کلکم راعٍ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہاری ذمہ داری کے بارے میں، تم نے کیا ذمہ داری نبھائی؟ تم اپنی اولاد پر اپنا فیصلہ سناتے ہو، اپنی حکومت چلاتے ہو، تمہاری حکومت تمہاری اولاد پر نہیں چلے گا، تمہاری صرف ذمہ داری ہے اس پر، تم ایک ذمہ دار ہو، اس پر کیا ہونا کیا کرنا یہ صرف اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کے رسول فیصلہ کرے گا۔ جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سنا دیا ہے اس فیصلے پر تمہاری اولاد ہے کہ نہیں ہے
تم اس کے ذمہ دار ہو، تم اس چیز کی نگران ہو، تم یہ چیزیں دیکھو، اپنی اولاد پر تم حکومت مت چلاؤ۔ اسی لیے محترم حضرات، اپنی اولاد کو تربیت دو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اسکول جاتی ہے آپ کی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو سکھاؤ۔ اگر بیٹا ہے تو سکھاؤ کہ کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کرنا، اس کو سکھاؤ کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ جس اسکول میں ایک بینچ میں لڑکی اور لڑکا بیٹھتا ہے، اس اسکول میں علم حاصل کرنا، اس اسکول میں پڑھنا پڑھانا حرام ہے، حرام ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس اسکول میں ایک ہی بینچ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھتی ہے، اس اسکول میں پڑھنا پڑھانا حرام ہے، نہیں پڑھا سکتے، اور آپ بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو بتاؤ اس کو کہ کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرنا، کسی بھی لڑکے کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اس کو سکھاؤ۔ آپ سکھاتے ہیں، بچہ بھی چھوٹا ہے، بھیج دیتے ہیں اس کو، جو کر رہا ہے۔ آج دیکھو 9-10 سال کے بچے لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لڑکیوں کے فراق میں رہتا ہے، لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں لڑکوں کے فراق میں رہتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ذمہ دار آپ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تو کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے تو فیصلہ سنا دیا تھا کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی آپس میں ملے نہیں، لیکن آپ نے اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ آپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا چھوٹا ہے، اسی لیے اپنی اولاد کو سنبھالو۔ دنیا میں تو کسی بھی طریقے سے زندگی گزر جاتی ہے، آپ چاہیں کوئی بھی ہو، غریب مالدار، انجینئر ڈاکٹر، یا پھر ان پڑھ، یا پھر مزدور، کچھ بھی کام نہ کر رہا ہو، اس کی زندگی تو گزر جائے گی، اس کا دن رات تو پار ہو جائے گا، لیکن آخرت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ کیا بنے گا تمہارا آخرت میں؟ اس کی تو سوچو۔ اسی لیے لوگوں، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ وہاں جانے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا کہ میں جہنم سے بچوں گا یا جنت سے بچوں گا۔ تمہاری اولاد تم سے بھاگے گی اس وقت، تم اپنی ماں باپ سے بھاگو گے، تم اپنے بھائی بہن سے بھاگو گے اس وقت قیامت کے دن، کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہ میرے ماں باپ مجھے کچھ گناہ نہ دے دے، اس لیے تم بھاگو گے۔ آج تم اپنی اولاد کو اس نیکی کے راستے میں نہیں چلا رہے، یہ افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے کہ تم اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکا، تم اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے والا نہیں بنا سکا۔ آج کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جس کی اولاد ایک حرف بھی نہیں پڑھ پاتا قرآن کی۔ ایسا کیوں ایسا؟ تمہاری اولاد تو لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ پاتا۔ یہ ہے تمہاری زندگی۔ ایک مسلمان اور ایک کافر، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ آپ سوچتے ہیں؟ سوچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔